میں ذرا فلائٹ بک کروا لوں، اس نے انسنی کرتے ہوئے وہیں کمرے میں ٹہلتے ہوئے موبائل پہ نمبر ملایا۔ اتا ترک ایئرپورٹ سے ان کو کیسری کے ایئرپورٹ کیسری حوالانی کی صبح کی فلائٹ ملی تھی۔ حوالانی، تم لوگ ایئرپورٹ کو حوالانی کہتے ہو اور ہم ہوائی اڈا۔ اردو کے الفاظ ترک سے بھی نکلے ہیں، اس لیے فون بند کرتے ہوئے جیسے محفوظ ہو کر بولی۔ بہاریں بہت غور سے اس کی بات سن رہی تھی، لیکن اگر ڈی جے ہوتی تو کہتی ترک اردو سے نکلی ہوگی، مگر ہمارے اردو اوریجنل ہے۔ بالکل، وہ دھیرے سے ہنسی اور سر جھٹکا۔ میڈان پاکستان، یہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھی، اس کا لہجہ کہیں کھو سا گیا۔ ڈی جے، وہی جو مر گئی تھی؟ بہاریں نے بہت سمجھداری سے پوچھا، وہ اپنا سوال بھول چکی تھی۔ ہوں، اور اب وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ بعض لوگ اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ ان سے دوبارہ ملنے کے لیے مرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پہ تاریک سائے آن ٹھہرے۔ وہ کھڑکی کے پاس آئی اور سلائڈ کھولی۔ باہر تاریکی میں ڈوبتی سبانجی کے وسیع و عریض میدان نظر آ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے وہ روز صبح اس جگہ کھڑی ہو کر کیا کہتی تھی؟ کیا؟ وہ کہتی تھی گڈ مارننگ۔ الفاظ لبوں پہ دم توڑ گئے۔ جب پچھلی دفعہ وہ پاکستان سے آئی تھی تب بھی ڈی جے کا مقولہ دہرانے سے قبل الفاظ اسی طرح دم توڑ گئے تھے، مگر تب وجہ شدت غم تھی اور آج وجہ سامنے کھڑی تھی، بلکہ کھڑا تھا۔ سفیر عثمان، اس نے جلدی سے سلائڈ بند کی اور پردہ برابر کیا۔ بہاریں اسپرنگ کی طرح بنک سے اچھل کر نیچے اتری۔ یہ کیوں یہاں آیا ہے؟ وہ بے یقینی سے دہراتی پردے کی درد سے دیکھنے لگی۔ بہاریں بھی اس کے ساتھ کھڑی ایڑیاں اونچی کر کے کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ وہ سبزہ زار پہ سفیر کھڑا ایک اسٹوڈنٹ کو روک کر جیسے کچھ پوچھ رہا تھا۔ وہ جواباً نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ ہمارے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ خطرے کی گھنٹی کہیں بجتی سنائی دے رہی تھی۔ بہاریں نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا وہ مجھے لے جائے گا؟ نہیں، تم میرے ساتھ رہو گی، میں کچھ کرتی ہوں۔ اس نے موبائل نکالا اور جلدی سے حالے کا نمبر ملایا۔ ہر مشکل وقت پہ حالے ہی اس کے کام آتی تھی۔ سفیر برا نہیں ہے، وہ میرا اور عائشہ کا بہت خیال رکھا کرتا تھا، وہ بالکل ہمارے بھائی جیسا ہے۔ بھائی صرف وہی ہوتا ہے جسے اللہ نے آپ کا بھائی بنایا ہو بہاریں، اور جسے اللہ آپ کا بھائی نہ بنائے وہ کبھی بھائی نہیں ہو سکتا۔ بس تم اور عائشہ، تم لوگ بہت سادہ ہو۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ حالے لائبریری میں تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ فوراً باہر آئی اور سیدھی سفیر کی طرف گئی۔ وہ اسے پہچان گیا تھا، ہوٹل گرینڈ میں وہ اسے مل چکا تھا۔ سفیر نے اسے پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا پوچھا تو حالے نے بتایا کہ وہ تو دوپہر کی ٹرین سے ازمیر چلی گئی تھی۔ کس اسٹیشن سے، یہ حالے نہیں جانتی تھی، لیکن سفیر نے اسے اپنا نمبر دے دیا کہ اگر حیا کے بارے میں کچھ معلوم ہو تو اسے ضرور آگاہ کرے۔ حالے نے اس کی پوری تسلی و تشفی کروا کر فون نمبر رکھ لیا، اور وہ ایک بچی کا بھی پوچھ رہا تھا جو غالباً یہی ہے۔ ڈونٹ ٹیل می حیا کہ تم نے اسے اغوا کیا ہے۔ سفیر کے جانے کی تسلی کر لینے کے بعد اب حالے اس کے ڈروم میں بیٹھی خوش ہوتے ہوئے اپنی کارگزاری بتا رہی تھی۔ میں اناتولیا کی بہاریں گل ہوں، مجھے کوئی اغوا نہیں کر سکتا۔ بہاریں باقاعدہ برا مان گئی۔ پھر حالے، کل تمہارا خوش قسمت دن ہوگا یا بد قسمت؟ اس نے بہاریں کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنی پیکنگ سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ صبح وہ گورسل کی بجائے حالے کی کار میں ایئرپورٹ پہ جانا چاہتی تھی۔ کوئی خبر نہیں کہ سفیر صبح پھر واپس آ جائے۔ خوش قسمت دن، حالے نے ہمیشہ کی طرح پرخلوص انداز میں بتایا۔ ترک اور ان کی مہمان نوازی، وہ واپس جا کر ان سب کو بہت مس کرے گی، وہ جانتی تھی۔ صبح منہ اندھیرے حالے انہیں لینے آ گئی۔ اس نے احتیاطاً حالے کو بتایا تھا کہ وہ انقرہ جا رہے ہیں، اور یہ کہ وہ لڑکا بہاریں کا ہمسایہ ہے اور اسے اس سے کچھ تحفظات ہیں۔ جب حالے چلی گئی تو اس نے کپاداکیا کے لیے 2 ٹکٹس خریدے۔ حیا، بہاریں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کی عبایا کی آستین ذرا کھینچ کر اسے متوجہ کرنا چاہا۔ ہم اسے کپاداکیا میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ صبح سے وہ کوئی تیسری مرتبہ یہ سوال دہرا رہی تھی۔ تیز چلو بہاریں، ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ حیا، ٹیل می ناؤ۔ بہاریں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم زور سے چیخی۔ حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ بہت غصے اور خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اطراف میں بھی لوگ مڑ مڑ کر دیکھنے لگے۔ سوری۔ وہ ہاتھ ہٹا کر ان ٹھٹک کر دیکھنے لوگوں سے معذرت کرتی بہاریں کے پاس واپس آئی، جس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھی اور گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ تم نے کبھی سمندر سے مچھلیاں پکڑی ہیں؟ بہاریں کی آنکھوں میں الجھن نہ رہی، مگر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب اتنے بڑے سمندر مچھلی پکڑنی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ بہاریں، فش راڈ کی کنڈی پہ چھوٹی مچھلی لگاتے ہیں اور راڈ پانی میں ڈال کر کنارے پر بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں۔ بڑی مچھلی خود بخود تیر کر ہمارے پاس آ جاتی ہے نا؟
हम कप्पादोकिया पे मछलियाँ पकड़ने जा रहे हैं हया। बहारे को बेपनाह हैरत हुई। नहीं मेरी बहन, इसने गहरी सांस ली। कैसे समझाए? वहीं बैठे बैठे पर्स खोलकर इसने वो डब्बी निकाली जिसे वो सुबांजी के ड्रॉम में रखकर भूल गई थी। इस डब्बी में एक ट्रेसर है जो अब्दुर्रहमान का है। इस ट्रेसर का रिसीवर इसके पास है। होता यह है कि जब मैं इसके करीब होती हूँ चंद मील के फासले पे, तो इसको अपने रिसीवर पे पैगाम मिल जाता है कि मैं इस शहर में हूँ। क्या हमें भी पता चल जाएगा कि वो किधर है? नहीं बहारे, हमें इसको नहीं ढूंढना, इसे हमें ढूंढना है। जैसे ही इसे पता चलेगा कि हम इसके करीब हैं, वो मुझे कॉल करेगा और मैं पहली दफ़ा मेजर अहमद की कॉल का इंतज़ार करूँगी। इसने आखिरी फिक्रा दिल में कहा था और खड़ी हो गई। बहार नीम फहमी से अस्पात में सर हिलाते हुए इसका फिर से हाथ पकड़ लिया। वो शायद ठीक से समझ नहीं पाई थी। आज से लाखों बरस कबल अनातोलिया के पहाड़ों बशमुल हुसन दाग और तरके दाग में पहाड़ों को कहते हैं का लावा फटा था और यूं सयाल मादा इन पहाड़ों की चोटियों से बहता इर्द गिर्द के मैदानों में दूर दूर तक फैलता गया। कई सदियां इस लावे के सूखने में लगी और तकरीबन 30 लाख वर्ष कबल ये लावा मुकम्मल तौर पर खुश्क तो हो गया, लेकिन बारिश और कटाव के बाद ये अपने ज़मीन के चेहरे पे एक अजीबो गरीब इलाका छोड़ गया। चांद की सरजमीन से मुशाबत रखने वाले मैदान और दायां जहां हैरत अंगेज नक्शो निगार बने रह गए, जैसे हाथ से किसी माहिर मुसव्वर ने बनाए हों। कप्पादोकिया, खूबसूरत घोड़ों की सरजमीन। कप्पादोकिया का पहला नाम किसने रखा, इस बारे में कई रवायात में, अलबत्ता इसका मौजूद नाम कप्पादोकिया के बारे में आम राय यही थी कि फारसी के कतपत्तों की से निकला है, यानी खूबसूरत घोड़ों की सरजमीन। इस खुश्की और सब्ज़े का इम्तजाज लिए इलाके की मिट्टी और सतह खासी नरम है। इसके बायस गए वक्तों की ईसाई तहजीबों ने यहाँ पहाड़ों के अंदर गार नमा बड़े बड़े घर और चर्च बना लिए थे। इनकी खिड़कियाँ यूं होती कि दूर से लगता जैसे किसी पहाड़ी की बहुत सी आंखें हों। ज़मीन के अंदर बने सैकड़ों शहर आज भी यहाँ मौजूद थे। सदियों पुराना गारों से बना हुआ खूबसूरत कप्पादोकिया, मासन के कबूतरों की सरजमीन। क्या कप्पादोकिया तुर्की के सूबे नौशहर में वाक़या है। इसमें छोटे छोटे शहर थे जैसे अरगबक और गुरीमे वगैरह, जहाँ घर, इबादत गाहें, होटल सब गारों की सूरत बने थे। अरगब से घंटा भर की ड्राइव पे कैसरी का एयरपोर्ट कैसरी हवालानी था, जहाँ इसका जहाज इस सुबह उतरा था। हम कहाँ रहेंगे हया? बहारे इसका हाथ पकड़े एयरपोर्ट के लाउंज में इसके हमरा चलते हुए इससे बार बार पूछ रही थी। किसी होटल में रहेंगे ना, पहले कुछ खा लेते हैं। और अगर अब्दुर्रहमान ने फ़ोन ही बंद कर रखा हो तो? इसने नुक्ते पर पहुंचकर इसका अपना दिल डूब कर उभरा। ये वो आखिरी बात थी जो वो सोचना नहीं चाहती थी। इसके सारे नंबर्स बंद हैं, मगर इसने कोई दूसरा नंबर ऑन कर रखा होगा और यकीनन जीपीएस रिसीवर भी ऑन होगा। वो ज़रूर कॉल करेगा। इसने बहारे से ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। अब्बा और फुफो को भी बता दिया था कि वो अपनी दोस्त के साथ कप्पादोकिया जा रही है। अगर इसने फुफो से रब्ता किया तो जान लेगा, वरना नहीं। वो दोनों एयरपोर्ट के कैफेटेरिया में आई और एक मेज़ के करीब अपना सामान रखकर कुर्सियां खींची। आसपास कम ही लोग थे। काउंटर साथ ही था और इस्तकबालिया पर मौजूद लड़के के साथ 2-3 नौजवान लड़के खड़े हंसते बातें कर रहे थे। तुर्की में लड़कियों का तन्हा सफ़र करना बहुत आम सी बात थी, मगर लड़के तो लड़के होते हैं। चंद ही लम्हे गुजरे, वो इनकी तरफ मुतवज्जा हो गए, मुस्कुराते हुए मुड़ मुड़ कर देखते हुए। अगर इसे जहान को ना ढूंढना होता तो वो कभी इधर ना आती। जब बार बार इनका गर्दन मोड़ना बर्दाश्त नहीं हुआ और बहारे भी नागवारी से नाक सुकोड़े वो उठ खड़ी हुई। आप ऑर्डर नहीं करेंगी? काउंटर वाले लड़के ने पहले तुर्क और फिर बहारे के इंग्लिश प्लीज कहने पे यही बात दोहराई ताकि हया समझ सके। नहीं, हमें जाना है, वो खौफत से कहती अपना सामान उठाने लगी। पता नहीं अब आगे क्या करना था। हाले को बताया नहीं था, सो होटल्स के बारे में नहीं पूछ सकती थी। आपको होटल चाहिए तो मैं मदद कर सकता हूँ, एक लड़के ने दांत निकालते हुए पेशकश की। शुक्रिया, मेरे पास होटल है, वो रखाई से कहकर बहारे का हाथ पकड़े पलटने ही लगी थी कि वो फिर बोला, कौन सा होटल? जितनी तेजी से इसने पूछा था, इससे ज्यादा तेजी से हया के लबों से निकला, ये ऊपर वाला।
اس نے بے-ساختہ جان چھڑانے کے لیے کاؤنٹر پہ رکھے گائیڈ بک لیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں پہلے صفحے پہ 3 ہوٹلز کی تصاویر اور معلومات درج تھی۔ اتنے فاصلے سے اس نے ہوٹل کا نام تو پڑھا ہی نہیں گیا، مگر وہ سب غیر ارادی طور پہ ہوا تھا۔ چاروں لڑکوں نے بے اختیار گائیڈ بک کے صفحے کو دیکھا، اوپر والے ہوٹل کی تصویر پہ نگاہ ڈالی اور پھر بے ساختہ کاؤنٹر والے کے دانت اندر ہوئے۔ ٹیک لگا کر کھڑا لڑکا سیدھا ہوا اور دوسرے نے فوراً جیسے شانوں سے قمیض کی ندیدہ سلوٹیں ٹھیک کی۔ آپ ملوت بے کی مہمان ہیں، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پلیز بیٹھیں، کاؤنٹر والا گڑبڑا کے وضاحت کرتا تیزی سے باہر آیا تھا۔ حیا نے رک کر ان کو دیکھا، باقی تینوں لڑکے سلام جھڑ کر فوراً ادھر سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ میں نے ملوت بے کو ابھی آدھا گھنٹہ پہلے بازار میں دیکھا تھا، وہ ادھر ہی ہیں، میں انہیں فون کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے اپنی موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ حیا اور بہارے نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر حیا نے کرسی دوبارہ کھینچ لی۔ ملوت بے آ رہے ہیں آپ کو لینے۔ فون بند کر کے وہ مستعدی سے مینیو کارڈ لے آیا۔ آپ آرڈر کریں، میں لے آتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد بے چین بیٹھی بہار گل نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ حیا، ملوت بے کون ہے اور ہم ان کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ سوچنے دو۔ ہم ایسے ان کے ساتھ نہیں چلے جائیں گے، عائشہ گل کہتی ہے اچھی لڑکیاں ہر جگہ۔ تم 2 منٹ کے لیے عائشہ گل کا لیکچر بھول نہیں سکتی؟ اب ہمیں کہیں اور رہنا ہے نا، اگر نہیں اچھے لگے یہ ملوت بے تو نہیں جائیں گے ان کے ساتھ۔ بہارے نے خفگی سے منہ میں کچھ بدبدا کر رخ پھیرا۔ وہ خود بھی ذرا مضطرب تھی، پتہ نہیں کون تھے وہ صاحب اور کیوں ان کو لینے آ رہے تھے۔ ایسے تو وہ نہیں جائے گی ان کے ساتھ، کوئی مرضی کے بغیر تو نہیں لے جا سکتا نا۔ ملوت بے آگے۔ مشکل 15-20 منٹ گزرے تھے کہ کاؤنٹر والے لڑکے نے صدا لگائی تو بے اختیار ان دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ سامنے سے ایک آدھیڑ عمر گورے سے ترک صاحب چلے آ رہے تھے، دراز قد، بے حد اسمارٹ، سر کے بال ماتھے سے ذرا کم، چہرے پہ نرم سی مسکراہٹ، نفیس سے پینٹ شرٹ میں ملبوس، مگر وہ شاہانہ تھے۔ ایک قدرے پستہ قد آنٹی ان کے ساتھ ایک طرف تھی، دوسری جانب ایک لمبا پتلا سا لڑکا 19-20 برس کا، اس کے ساتھ اس عمر کی لڑکی جس کے بال کندھوں سے کافی نیچے تک آتے سیاہ لہردار تھے۔ اس نے کیپری کے اوپر ڈیلی شرٹ پہن رکھی تھی اور ایک موٹی سفید گھنے بالوں والی ایرانی بلی بازو میں اٹھائے ہوئے تھی۔ لڑکی نے دور سے انہیں ہاتھ ہلایا۔ کیا یہ تمہاری رشتہ دار ہے؟ بہارے نے پیچھے سے مخاطب کیا۔ نہیں، میں تو اس فیملی کو جانتی بھی نہیں۔ وہ متذبذب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مرحبا، ہمیں دیر تو نہیں ہوئی؟ اگر پہلے پتہ ہوتا تو آپ کا اتنا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ ریئلی سوری۔ ملوت بے استقبالیہ مسکراہٹ کے ساتھ معذرت کر رہے تھے۔ ان کی مسز خوش دلی سے اسے ملنے کے لیے آگے ہوئیں۔ ترکوں کے مخصوص انداز میں باری باری گال ملا کر چوما اور الگ ہو گئی۔ وہ قد میں حیا سے کافی چھوٹی تھی۔ تم پہلے کال کر دیتی تو ہم جلدی آ جاتے، اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ اس سے الگ ہو کر وہ افسوس سے کہنے لگی، میں سونا ہوں، یہ میری بیٹی پنار ہے اور یہ فاتح ہمارے ساتھ کام کرتا ہے۔ میرا بیٹا گوخان آج کل انقرہ گیا ہوا ہے، ورنہ اس سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ میں حیا ہوں، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مزید کیا کہے۔ میں پنار اور یہ میری گارڈ فیڈ پنار لے، بلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزے سے بتایا، یہ پورے آشیانہ کی لاڈلی ہے، آج کل ذرا بیمار ہے، اسے علاج کے لیے لائے ہیں ادھر۔ اور چھوٹی بلی کا نام کیا ہے؟ بات کے اختتام پہ پنار نے جھک کر بہارے کا گال چھوا اور چھوٹی بلی کا پہلے نے تحیّر سے منہ کھل گیا اور پھر بے اختیار شرمائی، یوں کہ رخسار گلابی پڑ گئے اور پلکیں جھکائی بہت باریک نازک سی آواز میں بولی، اناطولیہ کی بہار گل۔ حیا نے پوری آنکھ کھول کر اس چھوٹی سی اداکارہ کو دیکھا جس کی یہ آواز تو خود اس نے بھی نہیں سن رکھی تھی۔ آپ استنبول سے آئے ہیں؟ ملوت بے پوچھ رہے تھے۔ میں پاکستان سے ہوں اور یہ ترکی میں میری رشتہ دار ہیں۔ ان سب کے والہانہ اور خوش خلق انداز کے آگے اس کا نو تھینکس کہنے کا ارادہ کمزور پڑنے لگا۔ باقی باتیں گھر جل کر کریں گے۔ فاتح آپا کا سامان اٹھاؤ، دیکھو وہ کتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ آؤ بیٹا، کب باہر ہے؟ مسز سونا اپنی مہمانوں کو مزید تھکانا نہیں چاہتی تھی۔ فاتح سامان اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو حیا بے اختیار بہارے کو دیکھا۔ چلو جلدی کرو حیا، تازہ تازہ تعریف سے گلنار ہوئی بہارے نے اچھلا کر اس کی آستین کھینچی۔ حیا نے گہری سانس لے کر بیگ فاتح کو تھما دیا۔ کہیں تو رہنا ہی تھا، اور فیملی رن ہوٹل سے اچھا کوئی ہوٹل نہیں ہوا کرتا۔ وہ دونوں ان کے ساتھ چلتی ہوئی باہر آئیں جہاں چھوٹی سی وین کھڑی تھی۔ اسے بے اختیار اپنا اور ڈی جے کا ترکی میں پہلا دن یاد آیا۔
जब अहमद और चगताई ऐसी ही एक वैन में उन्हें लेने आए थे। मलूद बे का होटल अरगब में था। तकरीबन घंटे की ड्राइव थी। खिड़की के इस पार कपादोकिया का खुश्क इलाका नजर आ रहा था, पुरस्कार खामोश दुनिया से अलग थलग गारों से बनी खूबसूरत घोड़ों की सरजमीन। दूर कहीं कोई हुसन के दोनों पहाड़ दिखाई देते थे, जो अपने अंदर का सारा वो सदी कबल जमीन पे उंडेल कर अब सुकून से खड़े थे। डीजे को बहुत हसरत थी कपादोकिया देखने की। खिड़की के बाहर देखते भागते मनाजर देखकर बेख्तियार इसके लबों से निकला, फिर फौरन चुप हो गई। डीजे कौन? पनार, जो बिल्ली को थपक रही थी, बेसाख्ता पूछ बैठी। मेरी एक दोस्त थी। इसके जवाब बहारे ने आहिस्तगी से इजाफा किया। मर गई है। ओ, पनार ने इसे तासुब से देखा। जब तुम्हारी बिल्ली मर जाएगी तो वो डीजे के पास चली जाएगी। चंद लम्हों बाद बहारे ने बहुत समझदारी से पनार की मालूमात में मजीद इजाफा करना चाहा। बहारे गुल, बहुत हो गया, इसने बुड़बड़ा के इसे टोका। फिर माजरत करनी चाहिए। सॉरी, ये बस ऐसे ही बोलती रहती है। मगर पनार और मिसेस सोना हंस पड़ी थी। ये छोटी बिल्ली कितनी प्यारी है ना। पनार ने झुक कर इसका गाल चूमा। आज से गार्डफील्ड बड़ी बिल्ली और तुम छोटी बिल्ली। बहारे शर्मा कर लबदान से दबाया, इस बात में सर हिलाया। देखा तुमने? वारिफादाना नजरों से हया को देखा। हया ने गहरी सांस लेकर सर झटका। ये लड़की बहुत पिटेगी इसके हाथों से। आशियाना के वो हौस एक छोटा सा 2 मंजिला होटल था। नन्ही सी पहाड़ी को काट कर बनाया गया था। सामने से जैसे कोई बंगला सा लगता था। एक तरफ बाहर से जाती सीढ़ियां, ऊपर टेरेस, सामने सेहन था। टेरेस और ग्राउंड फ्लोर दोनों के बरामदे मेहराबी थे। अंदर आधे कमरे पहाड़ को काट कर बनाए गए थे। वो कोई बहुत ऊंची पहाड़ी नहीं थी। होटल की छत से भी जरा कम थी। होटल की पुश्त इस पहाड़ी में गोया दनसी हुई थी। छोटा सा खूबसूरत सा आशियाना। मलूद हेलेंस का कपादोकिया में एक ख़ास मुकाम था। वो इस इलाके के डिस्ट्रिक्ट चीफ थे। लोग इनसे डरते भी थे और इनकी इज्जत भी करते थे। इनके मेहमान के साथ कोई बुरा सलूक नहीं कर सकता था। और आज होटल के सातों कमरे खाली थे। वो और बहारे ही आशियाना की मेहमान थी। ये है तुम्हारा कमरा। मुझे लगा तुम्हें ये पसंद आएगा। अगर बदलना है तो बता दो। मुतहर्रक से में से सोना इसको ऊपरी मंजिल के एक कमरे में ले आई। वो खाकी सरमई संगे मरमर से बना बहुत खूबसूरत था। कोनों में ज़र्द बल्ब लगे थे। सारे जला दो तब भी कमरे गार का नीम मध्यम सा अंधेरा बरकरार रहता था। सुर्ख से क्लीन का टुकड़ा फर्श पे बिछा था। इसी सुर्ख का एक बहुत बड़ा सा सोफा खिड़की के आगे रखा था। डबल बेड पे भी गहरे सुर्ख मैरून रंग की चादर बिछी थी। बेड की अकबी दीवार पे एक जाली और गुलाबी पर्दा लगा था, जो आगे को होकर बेड की पाइंती तक गिरता और बेड पे सोने वाले को जैसे ढक लेता। बाहर टेरेस पे गोल गोल मेजें थी, जिनके गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। वहां बैठ कर देखो तो खुला आसमान और सारा कपादोकिया दिखाई देता था। इतनी खूबसूरत जगह, नामालूम सी अदासी छाई हुई थी। जहान के बगैर इसे सब कुछ उदास लग रहा था। अगर इसने वाकई रिसीवर ऑफ कर दिया हो तो। मुझे ये कमरा पसंद है और मेरी छोटी बिल्ली को भी। बज़ाहिर बशाशत से मुस्कुराते इसने मिसेस सोना को इत्मीनान दिलाया। आशियाना शहर से ज़रा अलग थलग था। सो मलूद बे ने कह दिया था कि वो जहाँ जाना चाहें वो उन्हें ड्रॉप कर देंगे। वो खालिसतन मेहमान नवाज तुर्क ख़ानदान था, वरना होटल का मालिक, जो शहर का डिस्ट्रिक्ट चीफ हो, कहाँ अपने मेहमानों को ड्राइव करके ले जाया करता है। मलूद बे को पूरा कपादोकिया जानता था। इनके मेहमान को किसी भी किस्म के टूर पैकेज पे खसूसी डिस्काउंट मिल जाता। इनका नाम मलूद उर्दू लफ्ज़ नो मलूद का मलूद ही था। हमारे वो नाम जो ये ख़त्म होते हैं, तुर्क उन्हें ते पे ख़त्म करते थे। वो अहमद को अहमद, बुलंद को बुलंद और मलूद को मलूद पुकारते थे। ऐसे ही हमारे वो नाम जिनके आखिर में बे आता था, तुर्क इनके आखिर में पे लगाया करते थे। यूँ तैयब से बना तैयब, अयूब से अयूब और ज़ैनब से ज़ैनब। वो सारा दिन कमरे में ही रही थी। फिर शाम को मिसेस सोना और फातिह शहर जा रहे थे तो इनके साथ चली गई। हया की ट्रेसर वाली डब्बी पर्स में ही साथ रखी थी। अगर वो इधर होता तो जान लेगा वो इसके करीब है। पता नहीं दिल के रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं या जीपीएस के। मगर जब रात उतर आई और फ़ोन नहीं बजा तो उम्मीद खोने लगी। अगला पूरा दिन भी उन्होंने कमरे में गुजारा। खाना भी वहीं खाया। मिसेस सोना के हाथ के बने सलाद, जेली, जाम, बिल्कुल घर जैसा जायका। फिर भी वो बहुत बेजारी महसूस कर रही थी। बाहर जाना चाहती थी मगर इसने मना कर दिया।
क्या अब्दुर्रहमान कॉल नहीं करेगा? इसने सुबह से कोई 10वीं दफ़ा पूछा था। मुझे नहीं पता। फजूल बातें मत करो। बहारे की आंखों में नाराज़गी दार आई। तुमने अगर दोबारा मुझसे ऐसे बात की तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने कहा ना फजूल बातें मत करो। सख्ती से झिड़क कर वो ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए उठी। बहारे नाक सिकोड़कर मुंह में कुछ बड़बड़ाई। क्या कहा तुमने? वो जाते जाते जैसे तप कर पलटी। नहीं बताऊंगी। बहारे इतने ही गुस्से से कहते टेरेस की तरफ चली गई। रात में मिसेस सोना उन्हें बुलाने आ गई। तुम लोग सुबह से कमरे से नहीं निकले। तबीयत तो ठीक है? हस्बे तवक्को फिक्रमंद हो गई थी। टूरिस्ट सैर के लिए ना जाए ये इसके लिए अजीब सी बात थी। नहीं, वो दरअसल एक दोस्त ने इस्तांबुल से आना था, इसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो आ जाए तो मिलकर कप्पाडोकिया देखेंगे। इसने जल्दी से वजाहत दी और फिर इनके असरार पर वो दोनों डिनर के लिए चली गई। निचली मंजिल का डाइनिंग हॉल पत्थर की दीवारों से बना मध्यम सा रोशन था। वो 4 मेज़ें कुर्सियां रखी थी। दीवार के साथ फर्शी नशिस्त के तर्ज के ज़मीन से 2 बलिष्ठ ऊंचे पत्थर के सोफे बने थे जिन पे मैरून तुर्क कलीन बिछे थे। इसने भी इसी मैरून शेड्स का अजरक का कुर्ता और स्याह ट्राउज़र पहन रखा था, ऊपर स्याह हजाब। इसे हजाब से खाता देख कर ट्रे उठाए हाल में दाखिल हुई, पटार ठटक कर रखी और फिर सामने काउंटर पर खड़े फाते को पुकारा। फाते, तुम किचन देख लो, वो कंफर्टेबल नहीं है। इसने तुर्क और अंग्रेजी दोनों में कहा क्योंकि फाते की इंग्लिश कमज़ोर थी। जी आपा कहकर वो ताबेदारी से वहाँ से हट गया। थैंक्स, वो हल्के से मुस्कुराई। दिल में इतनी किल्फत छाई थी कि मुस्कुराना भी दुश्वार लगता था। खाने के बाद वो दोनों आगे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आ गई। इनके पैर में दर्द था, इसलिए वो आते ही बिस्तर पर लेट गई। वो पीछे दीवार से लटकता जालीदार पर्दा अपनी पैंती तक फैला दिया। अब छत लेटे इसे छत गुलाबी जाली के पार दिखाई दे रही थी। हया, तुम मुझसे नाराज हो? साथ लेटी बहारे थोड़ी देर बाद जरा करीब खिसक आई। हया ने गर्दन जरा सी तिरछी करके इसे देखा। क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आशिकुल कहती है किसी को नाराज करके नहीं सोते। क्या पता हम सुबह उठे ही सके न या नहीं। मैं नाराज नहीं हूँ। वो गर्दन सीधी करके दोबारा गार की छत को देखने लगी। मैं बस परेशान हूँ। तुम परेशानी में यूं ही गुस्सा करती हो? हाँ, और तुम क्या करती हो? मैं? बाहर एकदम जोश से उठ बैठी। मैं आसमान में उड़ती हूँ, अदलार के बगलों और सुल्तान अहमद मस्जिद के कबूतरों के साथ। क्या तुम्हें ये करना आता है? हया ने चंद लम्हे इसके मासूम शफाफ चेहरे को देखने के बाद नफी में सर हिलाया। बचपन भी कितना प्यारा होता है ना। कंधे और दिल बहुत सारे बोझ से खाली होते हैं। मैं तुम्हें सिखाती हूँ, आंखें बंद करो। हया ने आंखें बंद की। वहीं एक शख्स हर जगह नजर आने लगा था। तकलीफ का एहसास जैसे सवा हो गया था। अब तुम आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ रही हो, ऊपर, बहुत ऊपर। देखो, तुम उड़ रही हो। साथ ही वो दबे कदमों बिस्तर से उतरी। हया ने पलकों की झरी से देखा। वो अख्तियार से बिल्ली की चाल चलती स्विच बोर्ड तक गई और पंखा फुल चला दिया। वो फिर इसी तरह वापस आ गई। देखो, अब तुम ऊपर हवा में उड़ रही हो। देखो, हवा चल रही है। आंखें मत खोलना वरना नीचे गिर जाओगी। इसने बंद आंखों से इस बात में सर हिलाया। अगर जिंदगी का वो फैज़ कोई ख्वाब तो वाकई वो नीचे गिरने के खौफ से आंखें खोलना नहीं चाहती थी, मगर हकीकत तो हमेशा नीचे गिरा दिया करती है। इसने एकदम से आंखें खोल दी। ओहो, ये क्या किया? देखा, नीचे गिर गई ना। बहारी ने बुखला कर एहतजाज किया, फिर फुर्ती से उठकर पंखा बंद किया। हवा से गुलाबी पर्दा फड़फड़ाने लगा था। अल्लाह तुम्हें समझे, वो खफगीज कहती वापस आकर लेट गई। क्या तुमने नमाज पढ़ी? वो नमाज पढ़ने के लिए उठने लगी तो बहारे से पूछा। बहारे ने झट खुद पे बेड कवर तान लिया। हाँ, मैं भी पढ़ती हूँ। ओह, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, खुल नहीं रही। ओह। और फिर वो लम्हे भर में होशो खर्च से बेगाना सो चुकी थी। हया सर झटक कर रह गई। फिर वजू करने उठी तो फोन बजने लगा। रोहेल कॉलिंग। इसने कॉल पिक की। कब आ रही हो तुम वापस? ये मत कहना कि तुम मुझे मिस कर रहे हो। वो खिड़की के आगे रखे सोफे पे बैठी मुस्कुराकर कान से लगाए कह रही थी। वो तो खैर नहीं कर रहा, मगर अब्बा चाहते हैं कि मेरी शादी अनाउंस करें, एक वलीमा रिसेप्शन देकर। लेकिन जब तुम और जहान आओगे तभी फंक्शन हो पाएगा। गुड फॉर यू। बस कुछ दिन तक आ जाऊंगी। इसने बहुत से आंसू अंदर उतारे। कितने दावे से क्या कर आई थी कि वो और जहान साथ वापस आएंगे, मगर वो तो नहीं था। फ़ोन बंद करके इसने वज़ू किया, फिर वहीं जाए नमाज डालकर नमाज पढ़ी। सलाम फेर कर दुआ के लिए उठे हाथों को यूं ही देखने लगी।
दुआ। कितना अरसा हुआ जब इसने दुआ मांगनी छोड़ दी थी। जैसे डीजे के लिए दुआ मांगी वैसे फिर कभी न मांग सकी। कुछ था जो डीजे के साथ ही मर गया था। फिर माफ़ी, इस्तकामत मांगी, मगर दुनिया मांगना छोड़ दी। लोग, रिश्ते, नाते, ये सब दुनिया ही तो थे, और यही सबको चाहिए होता है। इसे भी यही चाहिए था। फिर लबों पे आकर सारी दुआएं दम क्यों तोड़ जाती हैं? ऐसा क्यों लगता है कि माफ़ी अभी तक नहीं मिली? वो गुमसुम सी हाथों की लकीरें देखने लगी। अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक भी कितना मुबहिम सा था। यह ख्वाहिश थी कि मैं इसे अच्छी लगूं, मैं इसकी मानूं, मगर इसमें मुझे कितना भरोसा है, कितना एतबार है। यहाँ आकर ज़िंदगी जैसे खाली जगह का सवाल बन जाती है। पूरे फिक्रे के दरमियान एक खाली जगह थी। इधर कौन सा लफ्ज़ लिखना था? इस जगह पहुंचकर वो लिखना भूल जाती थी। वो गुमसुम से हाथों की लकीरें देखने लगी। अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक भी कितना मुबहिम सा था। यह ख्वाहिश थी कि मैं इसे अच्छी लगूं, मैं इसकी मानूं, मगर इस पे मुझे कितना भरोसा है, कितना एतबार। यहाँ आकर ज़िंदगी जैसे खाली जगह का सवाल बनकर रह जाती। पूरे फिक्रे के दरमियान एक खाली जगह थी। इधर कौन सा लफ्ज़ लिखना था? इस जगह पर पहुंचकर वो लिखना भूल जाती थी। कोई दुआ मांगे बिना वो उठ खड़ी हुई और मेज़ पे रखे मोबाइल के स्क्रीन को उंगली से छुआ। वॉलपेपर जगमगा रहा था। कितना जहर लगता है ये वॉलपेपर, बिलखुसूस तब जब किसी खास टेक्स्ट की तवक्को हो। फिर जाए नमाज पर रखे दुपट्टा उतार कर बालों को उंगलियों से संवारे ड्रेसिंग रूम का पर्दा हटाकर इधर आई। हेयर ब्रश ड्रेसिंग टेबल पे रखा था। वहीं रात सोने से कबल 100 दफ़ा ब्रश करने की आदत। अपने बालों, जिल्द और खूबसूरती की हिफाजत पे इसे कोई समझौता ना था। ब्रश के साथ नकली फूलों का गुलदान रखा था, जिसके अंदर शीशे की एक डब्बी थी जो सुनहरी अफशां से भरी थी। इसने यूं ही वो डब्बी निकाली और खोली। सुनहरी चमचम करती अफशा इसके पुश्त की तरफ से आती रोशनी में मजीद चमक रही थी। फिर एकदम इसे दमकती अफशा पे छाया सी बन गई, जैसे इसके और बल्ब के दरमियान कोई आड़ आ गई थी। किसी ख्याल के तहत इसने सर उठा के आईना में देखा। इसके अक्स के पीछे कोई खड़ा था। अफशा की डब्बी इसके हाथ से छूट गई। एक जोरदार शाख सी चीख हलक से निकलने ही लगी थी कि पीछे खड़े शख्स ने सख्ती से अपना हाथ इसके लबों पे जमा दिया। शश, चीखना नहीं, सारी फैमिली भागती हुई आ जाएगी। वो इस चेहरा इसके करीब धीमी सरगोशी में बोला था। हया की आवाज़ ही नहीं, सांस भी जैसे रुक गई। वो फटी फटी बेयकीन आंखों से दम साइदे आने को देख रही थी। चंद लम्हे लगे इसके सांप को ढीला पड़ने में, और फिर इसने एक निडाल से एहसास के तहत आंखें बंद करके खोली। जहान ने आहिस्ता से अपना हाथ हटाया। सुनहरी अफशां इसके हाथों से होती हुई कदमों में जा गिरी थी। इसकी उंगलियां, फर्श, पैर का अंगूठा, हर जगह सोने के ज़रात चमके थे। एक लम्हे को इसने दोनों हाथ झाड़कर अफशां उतारनी चाही, मगर वो पूरे हाथ पे फैलती गई। वो धीरे से इसकी तरफ पलटी। वो अभी तक शॉक्ड और शल थी। तुम इधर क्या कर रहे हो? खाली खाली निगाहों से जहान का चेहरा देखते हुए बदवक्त कह पाई, यही सवाल मैं तुमसे पूछने आया हूँ। तुम इधर क्या कर रही हो? वो जैसे डेरों गुस्सा जब्त करके सख्ती से बोला, तुम अंदर कैसे आई? हया का दिमाग अभी तक सुन्न था। वह जवाब दिए बिना आगे बढ़ा और ड्रेसिंग रूम का पर्दा बराबर कर दिया। बेडरूम का मंजर छुप गया। फिर वो हया के मुकाबले दीवार से जरा टेक लगाकर जीन्स की जेबों में हाथ डालकर मुंतजिर सा खड़ा था। वो जैसे अलहदा जगह तफसील से बात करना चाहता था। इसके हवास धीरे धीरे बहाल होने लगे। वो अपने सुनहरी ज़रात वाले हाथ इस तराबी अंदाज में एक दूसरे से मलती ड्रेसिंग टेबल पर जा टिकी। फिर अपने खुले बालों को कानों के पीछे अड़से सुनहरी ज़रात स्याह बालों में भी ठहर गई, मगर इसे पता नहीं चला। अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि तुम मेरे पीछे इधर आ जाओगी तो मैं तुम्हें कभी ना बताता मैं कहाँ जा रहा हूँ। तुम्हारे पीछे? इसने जैसे तिल मिलाकर सर उठाया। बस एक पल लगा था इसे अपनी असली अंदाज में वापस आने में। तुमने मुझे कब बताया कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम भूल गए हो शायद। तुम बगैर कुछ कहे सुने आ गए थे। अच्छा, तुम्हें नहीं पता था कि मैं कप्पादोकिया में हूँ? वो इस तरह जेबों में हाथ डाले खड़े बगौर इसे देख रहा था। मुझे कैसे पता हो सकता है? तुम्हें कैसे पता है मैं तुम्हारे लिए इतना ट्रैवल करके आऊँगी? इससे जैसे अफसोस भरी हैरत से सर झटका। मैं तो खुद तुम्हें इधर देखकर हैरान हूँ, और तुमने मुझे कैसे ढूंढा? बल्कि एक मिनट, वो जैसे रुकी। डीजे और मुझे कप्पादोकिया आना था स्प्रिंग ब्रेक में, और तुम ये बात जानते थे। शायद तुम मेरे पीछे आए हो।
क्या ऐसा ही है? इसने लॉ टीचर से सुन रखा था कि जब अपना दफा कमज़ोर हो तो मुखालिफ पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। वो अपने दफा के चक्कर में पसपाई इख्तियार कर लेते हैं। नहीं, मैं इतना फारिग नहीं हूँ तुम्हारे लिए इधर आऊँगा। मैं भी इतनी फारिग नहीं हूँ। हातिया जहान ने एक गहरी नज़र इस पे डाली। इसके बाल वैसे ही माथे पे ज़रा बिखरे से थे। शेव हल्की बड़ी हुई थी और सफ़ेद रफ सी पूरी आस्तीन की शर्ट कोहनियों से मोड़ा हुआ था। वो इसको क्यों लाई हो? इसने अबरू से पर्दे की जानब इशारा किया जिसके पार बेडरूम था। हया ने बज़ाहिर लापरवाही से शाने उचकाए। इसके पासपोर्ट का मसला था कोई? वो बेकार इधर रह रही थी। फिर अब्बा ने कहा था कि मैं अकेली ना जाऊं तो मैंने सोचा कि बॉडीगार्ड साथ ले जाऊं, है ना? क्या है जहान, मैं कपादकिया गुम फिर भी नहीं सकती अपने दोस्तों के साथ। वो तिनक कर कहती, अपनी उंगली मैंने उंगली में प्लाटिनियम बैंड घुमाने लगी। सुनहरी अफशा से अंगूठी भर चुकी थी। जहान थोड़ी देर जांचती नजरों से बगौर इसे देखता रहा। ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम मेरे लिए इधर नहीं आई और तुम्हें बिल्कुल इल्म नहीं था कि मैं इधर हूँ। बहरहाल कल सुबह कैसरी से एक फ्लैट अता तर्क के लिए निकल रही है और एक सभी गोरचन के लिए। तुम कौन सी लोगी? बहुत संजीदगी से इसने इस्तांबुल के दोनों एयरपोर्ट के नाम लिए। क्या मतलब? मैं वापस नहीं जा रही। मैंने अभी कपादोकिया नहीं देखा। हरगिज नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम इधर रहो। तुम इधर यूं अकेले कैसे रह सकती हो भला? ये मेरा मसला है और मैं अकेली नहीं हूँ, हम दो हैं। तुम मेरी फिक्र ना करो, वो करो जिसके लिए तुम इधर आए हो। और वैसे मुझे ढूंढने के अलावा तुम इधर किस मकसद के तहत आए हो? मुझे बहुत से काम है ज़माने में। कहते कहते वो एकदम रुका। हया का दिल जोर से धड़का। जहान ने कलाई में बंदी घड़ी देखी, फिर नफ़ी में सर हिलाया। मैं इतनी देर यहाँ नहीं रुक सकता। तुम कल वापस जा रही हो हया? मैं नहीं जा रही। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे इधर रहने से? इसी पल कमरे में रखे इसके मोबाइल की मैसेज टोन बजी और वो बात रोक कर ड्रेसिंग टेबल के किनारे से उठी और पर्दा हटाकर मेज तक गई। जहान ने गर्दन मोड़कर इसके कदमों को देखा। पाँव को क्या हुआ है? मेज से मोबाइल उठाते हुए इसका दिल लम्हे भर को थमा। अल्लाह अल्लाह, इस आदमी की नज़रें, इससे कोई बात मख्फी क्यों नहीं रहती? इसने पाँव पे पट्टी भी नहीं बांधी थी, चल भी ठीक रही थी। फिर उफ, मेरे पाँव को। मोबाइल लेकर वापस मुड़ते इसने हैरत से गर्दन झुकाकर अपने पाँव को देखा। ओह, ये अफशा गिर गई थी, वो ही लग गई है। साथ ही इसने अंगूठा कलीन से रगड़ा। सुरख कलीन का वो हिस्सा फौरन चमचम करने लगा, मगर पाँव से अफशा नहीं उतरी। टखने एड़ी को कुछ हुआ है, मोच आई है या पाँव मुड़ गया? गर्दन तिरछी करके इसके पाँव को देखता कह रहा था, नहीं मेरा पाँव तो बिल्कुल ठीक है, मगर वो। अब मैं समझी। मोबाइल पे हाले का फॉरवर्ड मैसेज चेक करके वो सर हिलाती इसकी तरफ आई। तुम मुझे वापस भेजने के लिए बहाना ढूंढ रहे हो? जहान ने नज़र उठाकर इसे देखा। एक तो जब भी वो यूं देखता लगता था अंदर तक दिल का हाल जान लेगा। ठीक है, तुम इधर मेरी वजह से नहीं आई और तुम्हारे पाँव को भी कुछ नहीं हुआ। मुझे अभी जाना है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर कब मिलोगे? वो दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि वो बेख्तियार कह उठी। जहान ने रुक कर इस तरह देखा, जब तुम मेरे लिए आई ही नहीं हो तो दोबारा फिर क्या मिलना? अभी खुद ही तो तुमने कहा था कि बाद में बात करेंगे, वरना मुझे क्या? इसने खफकी से शाने हिचकाए। जहान ने जरा मुस्कुराकर सर झटका। कल दोपहर 1 बजे शार्प मुझे कुएं पे मिलना। कौन सा कुआं? मदाम आप मेरे लिए नहीं कपादोकिया की सैर के लिए आई हैं तो आपको यहाँ की तमाम टूरिस्ट अट्रैक्शन का पता तो होगा। कल हम कुएं पे मिलेंगे और ध्यान रखना कुआं काफ़ी गहरा है। तुम्हें क्लास्ट्रोफोबिया तो नहीं है? वो जैसे याद आने पे जाते जाते पलटा है, यानी नफ़ी में गर्दन हिलाई। ओके, इसने दरवाज़ा खोला, इख्तियार से अतराफ में झांका, फिर बाहर निकल गया। बाहर इसी तरह सो रही थी। हया ने दरवाज़ा बंद किया और फिर बेख्तियार दिल पे हाथ रखकर आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। एक दबी दबी मुस्कुराहट इसके लबों पे बिखर गई। बहुत स्मार्ट बनता है जहान। शायद वो इससे ज़्यादा स्मार्ट थी कि इसने इसे ढूंढ ही निकाला था। हाँ, इसके सामने ये नहीं मानेगी वो इसके लिए आई है। जिस बंदे ने इसे ख्वार किया है, इसको थोड़ा बहुत ख्वार करने का हक तो इससे भी है। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने वापस आई तो हेयर ब्रश उठाते हुए आईने में देखा। अजरक के कुर्ते पे सामने बालों पे कानों के करीब और दोनों हाथों पे अफशा लगी थी। एस्बेलिया स्टोन के फर्श पर डब्बी अभी तक उल्टी पड़ी थी। वो डब्बी उठाने के लिए नहीं झुकी। अफशा की सबसे प्यारी बात यह थी कि इसे जितना खुद से उतारने की कोशिश करो ये फैलती चली जाती है और जिसको छूती है इसको चमक अनायत कर देती है।
दोपहर 1 बजे शार्प। इसने जहरे लब मुस्कुराते हुए अपने अक्स को देखते ब्रश बालों में ऊपर नीचे चलाना शुरू किया। अब इसे 100 दफ़ा ब्रश करना था। सुबह आशियाना के तराफ के पहाड़ों पे बहुत सहानी उतरी थी। कप्पादोकिया को जैसे इसका हुस्न वापस मिल गया था। इसने बहारे को तैयार होने को कहा, फिर मजीद कुछ नहीं बताया। बहारे अभी बाल बना रही थी। वो इसे वहाँ छोड़कर अपने अबाया और स्कार्फ को पिन लगाते हुए नीचे आई। आज इसका मूड बहुत खुशगवार था। फातिहा इस्तकबालिया कन्वेंटर पे था। वो लॉबी पे छोटे से पथरीले कमरे की मानंद बनी थी। गारों में गार। सुबह बखैर आपा। जल्दी से काम छोड़कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। शुक्रिया फातिह। वो इसके सामने आ खड़ी हुई। एक बात पूछनी थी, यहाँ आसपास कोई कुआं है? कुआं? फातिह ने चंबे से दोहराया। पता नहीं, कुएं में बहुत से, मगर आप किस कुएं की बात कर रही हैं? कोई ऐसा कुआं जो टूरिस्ट अट्रैक्शन हो और बहुत गहरा हो। फातिह को बात समझाने के से आहिस्ता से अल्फाज दोहराने पड़ रहे थे। फातिह तजब्जुब से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं आपा, मैं ऐसे कुएं को नहीं जानता। वीरान कुएं मिल जाएंगे, मगर सियाहती मरकज मुश्किल में है। सोचो फातिह, कोई बहुत गहरा कुआं होगा। इधर सोचो ना। इसके दिल में बेचैनी सी अंगड़ाई लेने लगी। अल्लाह समझे जहान सिकंदर को कभी इंसानों की ज़बान में बात नहीं करेगा। फिर एक पहेली। मुझे वाकई किसी गहरे कुएं का नहीं पता। वो ज़रा देर को रुका। आप गहरे कुएं का तो नहीं पूछ रही? तो इतनी देर से मैं और क्या पूछ रही हूँ फातिह? नहीं नहीं, आप किसी कुएं का पूछ रही हैं, असली कुएं का जो गहरा हो, या आप गहरे कुएं का पूछ रही हैं? दोनों में क्या फ़र्क है? इसने सवालिया अबरू उठाई। शायद वो किसी मंजिल के करीब थी। देखें आपा। फातिह दोनों हाथ उठाते हुए टूटी फूटी इंग्लिश में कहने लगा। एक तो होता है कुआं जिससे लोग पानी निकालते हैं, जिसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, और एक है गहरा कुआं। वो कुआं नहीं है, वो यलनार शहरी है। यलनार शहरी मतलब? इसने नासमझी से पूछा। फातिह ने बेबसी से इसे देखा और नफ़ी में सर हिलाया। इसी पल मिसिस सोना लॉन्ड्री बास्केट उठाई वहाँ अंदर दाखिल हुई। फातिह ने फौरन उन्हें पुकारा। सोना खानम। यलतार शहरी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अंडरग्राउंड सिटी, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक मिनट मिसिस सोना, वो मुझसे कमरे में अफशा गिर गई थी, वो साफ हो जाएगी ना? हाँ, फिक्र ना करो, वेनार कर लेगी। इसे मुतमईन करके वो बाहर निकल गई। अंडरग्राउंड सिटी आपा? वजीर से ज़मीन शहर है जिसका नाम विनार क्यों यानी गहरा कुआं है। आप इसका पूछ रही थी ना? हया पुरयकीन नहीं थी। शायद मैंने कप्पादोकिया के ज़ैर ज़मीन शहरों का सुना तो है, मगर वो तो बहुत से होंगे। क्या ये वेरान क्यों कोई मशहूर स्पॉट है? ये कप्पादोकिया सबसे बड़ा एल्तार शहर है आपा, मगर आपको क्लियर्ड फोबिया तो नहीं है? वो जैसे चौंकी। इससे दिल की धड़कन एकदम बढ़ गई। नहीं। ओह हाँ, मुझे यहीं जाना है, बिल्कुल यही जगह है। वो जैसे पुरजोश हो गई। फिर आप पनार के साथ चली जाएं। वो आज शहर जा रही है गारफील्ड की दवा लेने। ठीक है। वो एकदम से इतनी खुश हुई कि इसकी आंखें चमकने लगी। फातिह ने जरा चंबे से इसे मुड़कर जाते देखा। आशियाना के किसी मेहमान को इतने क्लास्ट्रोफोबिया ना होने पर इतना पुरजोश होते हुए पहली बार देखा था। तुर्की के सूबा नौशहर का वही मानी था जो पाकिस्तान के शहर नौशहरा का है। वरीन क्यों यहाँ का सबसे बड़ा रिजर्व फैन शहर था। ऐसे सैकड़ों शहर कप्पादोकिया में मौजूद थे जो कम से कम भी 2 मंजिला थे, जैसे तहखाने पे तहखाने हों। गए ज़माने में कप्पादोकिया के बासियों असाई आबादियों ने ये शहर बनाए थे ताकि जंग के दिनों में यूं पनाह ली जा सके। इनके पास शहर के दहानों को मुकम्मल तौर पर बंद करने का निज़ाम भी मौजूद था। पानी, खुराक, रोशनदान, नकासी और अखराज का निज़ाम। गर्ज ये तमाम इंतज़ामात से आरास्ता मुकम्मल शहर थे, बस इसने आसमान नज़र नहीं आता था। 20वीं सदी के आगाज़ में ईसाई यहाँ से चले गए थे। अब बरसों से ये शहर वीरान पड़े थे। चंद साल पहले इनको सियाहों के लिए खोल दिया गया था। वीरान क्यों की 8 मंजिलें सियाहों के लिए खोली थी। वीरान का मतलब गहरा और क्यों यानी कुआं। उर्दू में गहरी दोस्ती और दुश्मनी के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़। दरीना का माकर भी यही वरीन था। मालूद बे इसे बहारे और पनार को एक लंबी ड्राइवे के बाद बैरी क्यों ले आए थे। वो गार्ड फील्ड को लेकर खुद शहर से चले गए और तीनों शहर के दाखिली सुरंग की तरफ आ गई जहाँ सियाहों की लंबी कतार लगी थी।
ورین کو باہر سے یوں لگتا جیسے کوئی چھوٹی پہاڑی ہو جس کی دیواروں میں بہت سے سوراخ تھے، یوں جیسے کوئی جادوگرنی خاکی چوگا اوڑھ کر جھکی بیٹھی ہو اور اس کے چوگے سے بہت سی آنکھیں جھانک رہی ہوں۔ داخلی سرنگار کے دہانے پہ وہ چھوٹا سا راستہ تھا جسے اندر جانا تھا۔ باہر دھوپ نکلی تھی لیکن سرنگ دور سے ہی اندھیری لگ رہی تھی۔ یہ سویٹر رکھ لو، شاید ضرورت پڑ جائے۔ پنار نے خود بھی سویٹر پہن لیا تھا اور اب دوسرا اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر چلچلاتے سورج کو۔ اتنی گرمی میں؟ رکھ لو، پنار کے دوبارہ کہنے پہ اس نے سویٹر طے کر کے بازو پہ ڈال لیا۔ سیاہ پرچ دوسرے کندھے پہ تھا۔ بہارے بے پنار کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ بالوں کو پونی میں باندھے وہ دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑے کھڑی تھی۔ اپنی باری پہ وہ ٹکٹ دکھا کر وہ آگے پیچھے سرنگوں میں داخل ہوئی۔ باہر دھوپ تھی، اندھیرا اندھیرا سا پھیلا تھا۔ کپادوکیا کے غاروں اور پہاڑ کی محیط پراسرار خوشبو سو پھیلی تھی۔ گائیڈ ان سب کی رہنمائی کرتا جا رہا تھا۔ رش کافی تھا اور راہداری تنگ، بعض جگہ کو اتنی تنگ ہوتی کہ دونوں کندھوں اطراف کے درمیان سے ٹکرانے اور بعض جگہ گردن جھکا کر آگے ہونا پڑتا۔ چند راہداریاں اور سیڑھیاں گزر کر وہ سب سیاح ایک بڑے کمرے میں جمع تھے جہاں شور سا مچا تھا۔ سیاحوں کے سوال اور اونچی آواز میں بولتا گائیڈ مچھلی بازار سے بنا ہوا تھا۔ وہ بور ہونے لگی۔ جہان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور فی الوقت یہ جاننے میں دلچسپی نہیں تھی کہ شہر کا روشن دان اور پانی کس طرح کام کرتا تھا۔ سو وہ پنار کی طرف مڑی۔ تم بہارے کا خیال رکھنا، میں بس آ رہی ہوں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ بہارے پریشانی سے کہہ اٹھی۔ میں اپنے طور پر اندر سے یہ شہر دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم پنار کو تنگ تو نہیں کرو گی؟ بہارے نے نفی میں سر ہلایا مگر وہ اس کے جانے پہ خوش نہیں تھی۔ تم جاؤ، میں چھوٹی بلی کا خیال رکھوں گی۔ وہ اس کمرے سے آگے کھسک آئی۔ کمرے ہی کمرے، راہداریاں، محرابی چوکھٹے جیسے ریممی کا سیٹ ہو۔ دیواروں پہ دور دور شعلوں کی مانند بلب لگے تھے جو اندھیر گلیوں کو مدھم زرد روشنی بخش رہے تھے، پراسرار مگر خوبصورت۔ وہ سیاحوں کے جگمٹوں سے ذرا آگے ہوئی تو ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ پنار ٹھیک کہتی تھی۔ اس نے گرے سویٹر عبایا کے اوپر پہن لیا اور بٹن سامنے سے کھلے رہنے دیے۔ وہاں آس پاس کوئی نہ تھا اور گھٹن والی جگہ تھی، سو نقاب تھوڑی تک نیچے کر دیا۔ وہ یوں ہی طویل راہداریوں سے گزرتی جا رہی کہ دفتن حیا کسی نے اس کے کندھوں کو ذرا سا چھوا تو وہ ڈر کر 2 قدم ہٹتے ہوئے مڑی۔ سانس لمحے بھر کو رکا، پھر بحال ہو گیا۔ بس ڈر گئی؟ خاکی پینٹ، بھورے آدھی آستین کی ٹی شرٹ، کندھے پہ بھورا سا دستی بیگ اور سر پہ سیاہ پی کیپ۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لمحے بھر کو کچھ کہہ نہیں پائی۔ ہیں؟ اتنی جلدی ڈر گئی؟ اور کل مجھے کسی نے کہا تھا کہ وہ اکیلے کپادوکیا میں رہ سکتی ہے۔ چونکہ ابھی وہ گزشتہ رات کی طرح نہیں ڈری تھی، سو لمحے بھر میں وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ کل کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اور تمہارا باڈی گارڈ؟ تو بھول ہی گیا تھا۔ ابھی کدھر ہے وہ؟ وہ دونوں نیم روشن راہداری کے وسط آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ جہان ایک نظر اس پر ڈال کر دائیں طرف کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ ایک بڑا سا کمرہ تھا، زیر زمین شہر کا کچن۔ ایک طرف زمین پہ چکور چولہا بنا تھا جیسے پاکستان میں گاؤں میں مٹی کے چولہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف دیوار میں کھڑکی کے مانند چکور بڑا سا خلا تھا۔ اسے اپنا کچن یاد آیا۔ جہان سے لاؤنج میں جھانکنے کے لیے آدمی دیوار چنتا خلا تھا۔ کچھ کہا تھا میں نے کل حیا؟ وہ اس کھلی بغیر پٹ کی کھڑکی کے ساتھ ٹیک لگائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہو گیا۔ کیا؟ وہ انجان بن گئی۔ تم واپس جا رہی ہو یا نہیں؟ دیوار پہ لگے بلب کی روشنی سے جہان سے ٹکر کر گزر رہی تھی، یوں کہ سامنے دیوار پہ اس کا سائیڈ پہ پڑنے والا حیا اس کے بالکل مقابل چولہے کی چوکی پہ آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سایہ جہان کے سائے کے مقابل گرنے لگا۔ وہ اصل میں کافی فاصلے پہ بیٹھا تھا مگر ایک ہی دیوار پہ گرتے آمنے سامنے بیٹھے سائے کافی بڑے اور قریب لگ رہے تھے۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں واپس نہیں جا رہی۔ مگر کیوں؟ وہ جیسے اکتا گیا۔ کیونکہ تمہارے لیے نہیں آئی، کپادوکیا دیکھنے آئی ہوں اور دیکھ کر ہی جاؤں گی۔ مگر میں چاہتا ہوں تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اتنے دن کیسے رہوں گی ادھر؟ میں نے وہ ویڈیو کھول لی تھی۔ جہان کے چہرے کے بجائے اس کے سائے کو دیکھتے ہوئے وہ رسان سے بولی۔
लम्हे भर को ज़ैर ज़मीन शहर पे सन्नाटा छा गया। जहान बिल्कुल चुप हो गया। इसे लगा वो हंस देगा, मगर फिर इसे रुकने को कहेगा। मगर तो तुम्हें अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं क्यों तुम्हें यहाँ से भेजना चाहता हूँ। वही संजीदगी भरा खुश्क सा अंदाज दचका लगा। कोई अपनायत, कोई राज बांटने वाला एहसास नहीं। वो तो वैसा ही था। नहीं, मुझे वापस नहीं जाना, और मेरे यहाँ रहने में से तुम्हें क्या मसला हो रहा है? इसकी आवाज़ में गुस्सादार आया। मुझे तुम्हारी फिक्र है और मैं चाहता हूँ तुम महफूज रहो, और ये महफूज जगह नहीं है। खड़े साई ने इतने ही गुस्से से सर झटका। तभी ज़मीन शहर की राहदारियों ने बैठे साई को उठते और खड़े साई के सामने आकर खड़े होते देखा। और वापस जाने से मैं महफूज हो जाऊंगी जहान? हाँ बिल्कुल, मुझे यहाँ से दो चार दिनों में अंकरा चले जाना है, फिर वहाँ से एक और शहर, फिर इधर से शाम से चंद दिन बाद इस्लामाबाद आ जाऊंगा। मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। हो सकता है रोहेल के वलीमे पे हम दोनों साथ हों, इसलिए अभी तुम चली जाओ। क्या गारंटी है इस बात की? हो सकता है वापसी पे मेरी फ्लाइट क्रैश कर जाए। चंद लम्हे वो वाकई कुछ कह न सका। मध्यम मशल की रोशनी में भी हया ने इसके बेतासर आंखों में कुछ जख्मी होते देखा। ऐसे मत कहो, इसकी आवाज़ धीमी होगी। नहीं जहान बे, मुझे बोलने दो। क्या गारंटी है मैं वहाँ महफूज रहूंगी? हो सकता है कोई पुराना दुश्मन मुझे गाड़ी तले कुचल दे। हया, मैं हो सकता है ये हमारा आखिरी सफ़र हो सकता है ये हमारा आखिरी सफ़र हो। क्या तब भी तुम इसे मेरे साथ नहीं करना चाहोगे? इसकी आवाज़ वैरी बनकर दीवार से टकराकर पलट रही थी। अब इसमें आंसू भी शामिल थे। मैं सिर्फ तुम्हें महफूज देखना चाहता हूँ हया, वो जैसे बेबसी से बोला था। और तुम खुद? मेरा क्या है, मेरे लिए रोने वाला कोई नहीं होगा। मगर मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये चाहते हो कि तुम वो चाहते हो। तुम हर वक्त सिर्फ अपना क्यों सोचते हो जहान? तुम हर चीज़ प्लान करके क्यों रहना चाहते हो? तुम हर वक्त दूसरों को क्यों आजमाते रहना चाहते हो? हया इसे जैसे दुख पहुंचा था। वक्त पीछे चला गया था। वो इसका जिंजर ब्रेड हाउस तोड़ चुका था और वो इस पर चिल्ला रही थी। नहीं, बोलने दो, आज मुझे बोलने दो। जितना तुमने मुझे आजमाया, इससे आधा भी मैं तुम्हें आजमाती ना तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाते। वो गुस्से में बुलंद आवाज में बोल रही थी। दीवार पर गिरते साए असल से ज्यादा करीब खड़े थे। तुम ये चाहते कि हर दफा चीजें तुम प्लान करोगे और सब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो जाएगा। फिर बाद में लोग तुम्हारी बातों के दूसरे मतलब ढूंढते फिरेंगे और इन सब का दिल कितना टूटेगा। तुम्हें कब परवाह होती है? तुम दूसरों को कभी नहीं सोचते। मगर हर दफा ऐसा नहीं हो सकता। हर दफा दूसरे तुम्हारी तरफ की कहानी नहीं समझ लेंगे। ये कर लो वो हो जाएगा, वो कर लो ये हो जाएगा। मैं मजीद तुम्हारे इन प्लान्स के मुताबिक नहीं चल सकती। बोलते बोलते इसका सांस फूलने लगा। जहान ने हाथ जेबों से निकालकर सीने पे लपेट लिया और दाएं जोगड़ से जमीन को खुरचता वो सपाट चेहरे के साथ सुन रहा था। और जो कुछ अंदर भरा है मेरे खिलाफ वो भी कह दो। मेरे अंदर जो भी भरा है तुम्हें परवाह नहीं है। तुम मुझसे मेरे बुरके पे बहस करके चुपचाप चले आए। अगर तुम्हें मेरे बुरके से मसला नहीं था तो फिर तुमने एक दफ़ा भी कोई उम्मीद, कोई वजाहत क्यों नहीं दी? क्या ये मुनासिब था कि तुम मुझे यूं छोड़ कर आए और सारा ख़ानदान मेरा तमाशा बनता? तुम हर दफ़ा ये समझते हो कि बाद में तुम दूसरे को मना लोगे। मना लेने से दिल पे लगे ज़ख्म मिट जाते हैं। सख्त लकड़ी पे भी कुल्हाड़ी की एक ज़रब लगाओ तो सारी उम्र के लिए निशान रह जाता है। मैं तो फिर इंसान हूँ। क्या तुम सारी ज़िंदगी यही करते रहोगे? इसकी आवाज़ दर्द से फटने लगी। जहान का बेतासर सपाट होता चेहरा देखकर इसे और भी गुस्सा चढ़ने लगा। जब से वो गुस्से से बोलने लगी थी तब से इसका चेहरा बेतासर पड़ गया था। और अगर मुझे कोई कुचल दे तो फिर किसको वजाहत देने आओगे? मगर तुम नहीं समझोगे। वो बेबसी से कहती पलटी और तेज तेज कदमों से बाहर निकल गई। खुला तनफस और आंखों में जमा आंसू, अजियत ही अजियत थी। वो भी किसको समझा रही थी? वो परवाही किसे थी? राहदारी में अब कदमों से चलती बेआवाज रोती आगे बढ़ती जा रही थी। फिर एक कमरे में बैठने को वैसी ही चौकी नजर आई तो जाकर इधर ही बैठ गई और चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर बेख्तियार रोने लगी।
चेहरा इसके लिए डांपा था कि गहरे कुएं की कदीम दीवारें इसके आंसू न देख सकें, सुरंग इसकी सिसकियां न सुन सके और मसनूई मशल की रोशनी में इसके हिचकियों से लरजते वजूद का साया न पड़े। मगर आंसू सिसकियां और लज्जत डांप लेने से भी नहीं डकती। वो भी किसको समझाना चाह रही थी? वो कहाँ इसकी मानता था? वो इसके साथ कप्पादोकिया में रहना चाहती थी जितने भी दिन वो इधर है, मगर वो इसे अब हमेशा की तरफ वापस भेज देगा। वो बेबसी सी बेबसी थी। इसने बेगा चेहरा उठाया। सुरंग, मेहराबी, चौखटें, भूल भुलैया सब सनसान पड़ी थी। वो वहां नहीं था। दीवार पे गिरता साया अकेला था। जहान इसके साथ नहीं था। वो अपने गुस्से में सब भूल जाया करती थी, ये भी कि एक दफा फिर वो हमेशा की तरह इसे छोड़कर आ गई थी। वो सब बातें कहकर जो वो सिर्फ इसको हर्ट करने के लिए कह रही थी। इसका मतलब वो हरगिज नहीं था। इसने दिल से वो सब नहीं कहा था। अल्लाह अल्लाह, ये इसने क्या कर दिया? वो अब कैसे आएगा इससे मनाने? जहान बदहवासी के आलम में उठी और राहदारी की तरफ आई। वो दाईं तरफ से आई थी, बाएं से शायद। दाईं से हथेली की पोछ से गाल रगड़ती वो इस जानब भागी। एक मोड़, दूसरा, दाईं तरफ। वो कमरा जहां दो साए खड़े थे, अब वो वहां नहीं था। वो खाली था। जहान आंसू फिर से इसकी आंखों में जमा होने लगे। वो कहीं भी नहीं था। इसने इसे एक बार फिर से खो दिया था। वो उल्टे कदमों वापस मुड़ी। मुश्किल सीढ़ियां मिली। बाहर जाने का रास्ता समझ आया। गाइड स्याह अभी तक वहीं थे। बहारे और पनार भी एक तरफ खड़ी थी। इसने बहारे का हाथ थामा और अपनी सुर्ख मतोरम आंखें छुपाने की सही किए बगैर बस इतना बोली, वापस चलते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? पनार पहले हैरान फिर परेशान होगी, मगर कोई जवाब दिए बिना वो गहरे कुएं दाखिली रजोन की तरफ बढ़ गई, जहां से सूरज की रोशनी झांक रही थी। वो तीनों सुरंग में आगे पीछे चलती गई। गार का अंधेरा छटता गया और बलाखर गार के दहाने पे सूरज चमकता खड़ा था। वो कहीं नहीं था, कहीं भी नहीं। पनार फिर कोई सवाल नहीं पूछा। बहारे जो बेचैन हो रही थी, इसे भी चुप करवा दिया। इसका दिल बार बार बढ़ रहा था। वो क्यों फिर इसे छोड़ गई? आखिर वो क्यों रूठने मनाने से आगे नहीं बढ़ते थे? अपने कमरे में आकर वह सुर्ख सोफे पे खिड़की की तरफ बैठ गई। सर घुटनों में दिए बेआवाज रोए जा रही थी। बहारे पता नहीं कहाँ थी। हर ख्याल और फिक्र से बेपरवाह आंसू बहाए जा रही थी। इसका दिल बार बार किसी खौफ के जहर असर सुकड़ता जा रहा था। बहारे इसे खाने के लिए बुलाने आई, मगर वो नहीं गई। दोपहर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगी और शाम का अंधेरा कप्पादोकिया में फैलने लगा। हर सू पहाड़ों पे बत्तियां जगमगाने लगी। वो इसी तरह सर सोफे में दिए बैठी रही। आंसू भी पानी से बने होते हैं और पानी आसमानों से उतारा जाता है। स्वांसों के बाद मरहम भी वहीं से आता है। नींद, पुरसुकून नींद। इस पे कब नींद तारी होगी इसे पता नहीं चला। जहन में, दिल में, आंखों के पीछे, हर जगह ज़ेरे ज़मीन शहर का मंजर उमड़ आ रहा था। वो गुस्से में इस पे चिल्ला रही थी और वो धीमे लहजे में इसे पुकार रहा था, हया बात सुनो। मगर वो इसे सुनना नहीं चाह रही थी। वो इससे फासले पे खड़ा था, मगर फिर भी पता नहीं कैसे इसको हौले से शाना हिला रहा था। हया उठो, मेरी बात सुनो। चांदी के मुजस्मे लौट आए थे। गहरे कुएं का अंधेरा छटता गया। चांदी की झील हर सू फैलती गई। इसने एक झटके से आंखें खोली। कमरे में मद्धम से रोशनी फैली थी। वह सोफे के सामने मेज किनारे बैठा जहान बहुत थकान से इसे देख रहा था। इसे आंखें खोलते देखकर थके थके अंदाज में मुस्कुराया। देख लो, तुम मेरे लिए कप्पादोकिया में नहीं आई, मगर मैं हर दफा तुम्हारे लिए आ जाता हूँ। फिर भी कहती हो मुझे परवाह नहीं है। वो एकदम उठकर बैठ गई। बिना पलक झपके वो यकटिक इसे देखने लगी। फिर अचानक बहुत से आंसू इसकी आंखों से टिप टिप गिरने लगे। जहान, आई एम सॉरी, वो भीगी आवाज में कहती इसी तरह इसे देख रही थी, कहीं पलक झपकने पे मंजर गायब ना हो जाए। मैंने वो सब जानबूझकर नहीं, मैं बस गुस्से में। मेरी बात सुनो, इसी धीमी लहजे में कहते हाथ उठाकर इसने हया को चुप रहने का कहा। तुम्हारी सारी बातें ठीक थी। तुमने सही कहा था। मैं वाकई बहुत दफ़ा गलत चीज़ें कर जाता हूँ। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं इसने एहतजाज को कहने की सही की, मगर वो सुन नहीं रहा था। मैं जानता हूँ कि मैं हर कोई हर वक्त हंसने मुस्कुराने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ, एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। मुझे दूसरों के दिल नहीं रखने आते। मैं लोगों पे जल्दी यकीन नहीं करता, शक करता रहता हूँ, और मेरी जॉब ने मुझे बेहिस बना दिया है। मैं अब बहुत प्राइवेट पर्सन बन गया हूँ। या शायद हमेशा से ही ऐसा था।
क्या तुमने दोपहर से कुछ खाया? अपनी रो में कहते एकदम इसने पूछा। अगर वो तवक्कुफ से बाइस्तफसार करता तो वो कह देती कि इसने खाया है, मगर वो हमला इतना शदीद था कि इसका सर खुद ब खुद नफ़ी में हिल गया। नहीं, हाँ, बस मुझे भूख नहीं थी। इसने बात बनाने की कोशिश की। अब वो आंसू पोंछ चुकी थी और ये इसके लिए खजालत का बाइस होता अगर वो जान लेता कि हया ने इसकी वजह से खाना नहीं खाया, मगर वो जान चुका था। नहीं, तुमने कुछ नहीं खाया और मुझे पता है लोगों से जवाब कैसे गिलवाए जाते हैं। वो मेज़ के किनारे से उठा और दूसरे कोने में रखी अंगीठी की तरफ गया। वहाँ एक छोटी सी मेज़ पे बहारे के पॉपकॉर्न के 2 पैकेट पड़े थे और ऊपर हैट एंड माइक्रोवेव ओवन नस्ब था। कैसे उगलवाए जाते हैं? इसकी पुश्त को देखते हुए वो वहीं से बोली। अब माइक्रोवेवन में का ढक्कन खोले खड़ा पॉपकॉर्न का एक पतला सा पैकेट अंदर रख रहा था जिसमें मकई के दाने थे। टाइम सेट करके इसने ओवन का ढक्कन बंद किया, इसे स्टार्ट किया और वापस इस तक आ गया। अगर तुम किसी से सच उगलवाना चाहती हो, फर्ज करो अपने अब्बा से, तो इनसे सवाल तब पूछा करो जब वो ड्राइव कर रहे हों। ड्राइव करते हुए अमूमन लोग सच बोलते हैं और मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? वो बस बात को तोल देना चाहती थी ताकि जहान पिछली बात भूल जाए और वो अपने अल्फाज दोहराए जाने की शर्मिंदगी से बच गई। सच बोलने वाले के चेहरे पर 10 अदद वाजिया निशान आ जाती है। इस वक्त जब वो झूठ बोल रहा हो, ओवन जूं की आवाज़ से चल रहा था। मकई के दाने वक्फे वक्फे से चटक रहे थे। एक तो होगी नजरें चुराना, बाकी 9 की सीव। अब वो सोफे पे पाँव नीचे करके दुपट्टा ठीक से शानों पे दुरुस्त करके ज़रा तमीज़ से बैठ गई थी। खुले बाल चेहरे के दाएं जानब डाल दिए थे। जामनी प्लेन कमीज़, जैतून रंग के दुपट्टे और चूड़ीदार की हमराही में भी इसके चेहरे को बशाशत नहीं दे सकी थी। मतरोनम आंखें जर्द पड़ती रंगत सारी दोपहर की कहानी वाजिया कर रही थी। निगाहें चुराना नहीं, लोग झूठ बोलते हैं, निगाहें नहीं चुराते। ये गलत तासर है। इनफैक्ट लोग झूठ बोलते हुए आपकी आंखों में ज़रूर देखते हैं और वहीं से पकड़े जाते हैं। तुमने आखिरी दफ़ा सच कब बोला था? कमरे में अब बुनी हुई मकई की खस्ता सी खुशबू फैली हुई थी। अभी 1.5 मिनट पहले, जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी सारी बातें ठीक थी। चलो जी, वो फिर वहीं पहुंच गया था। जहान, आई एम सॉरी, वो मैंने दिल से नहीं कहा था। लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ, तुमने ठीक कहा था। शायद ये वाकई हमारा आखिरी सफ़र हो। ओवन में ज़ोर से पटाखा हुआ। शीशे की डिश में रखे पैकेट में रखा कोई दाना बुनकर फूल गया था। शायद इसके अंदर भी कुछ सुलगा था। ऐसा मत कहो। वो तड़प के उसे रोकना चाहती थी कि अगर वो नहीं चाहता तो वो इधर नहीं रुकेगी। सुबह होते ही इसे छोड़कर चली जाएगी, मगर वो सुन नहीं रहा था। तुमने सही कहा, हर वक्त की प्लानिंग ठीक नहीं होती। मेरे मंसूबे भी बहुत दफ़ा मुझ पर ही उल्टे पड़े हैं। अब वो वक्त आ गया है कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मुझे इस बात से बाज आ जाना चाहिए, या कम अज़ कम इस सफ़र के लिए ही सही। मैं तुम्हें हमेशा से ही वो सब बताना चाहता था, मगर नहीं बता सका। मुझे मालूम था तुम मेरी बात नहीं समझोगी, जैसे कल रात से नहीं समझ रही। मगर तुम भी सही हो, मुझे हर वक्त अपनी मर्जी नहीं ठौंसनी चाहिए। जहान, वो इसे मज़ीद बोलने से रोकना चाहती थी। इसका अपना दिल भी ओवन की प्लेट की तरह गोल गोल घूमता किसी मंझदार में डूबता जा रहा था। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, मैं तुम्हें वो सब कुछ बताना चाहता था जो मैंने इस वीडियो में महफूज किया था, मगर मैं नहीं कर सका। मैं कुछ पा लेने के बाद खोने से डरता था, या शायद मुझे तुम पर एतबार नहीं था कि तुम मुझे समझोगी। अब शायद तुम मुझे समझो, मगर इस वक्त ना समझती। वो ठीक कह रहा था, इस वक्त वो वाकई ना समझ पाती। मगर अब वो ऐसी बातें ना करे, इसका दिल दुख रहा था। जो हो गया सो हो गया, मैं सब दोबारा नहीं दोहराना चाहता। अब भी मुझे तुम्हारे यहाँ रहने से कोई मसला नहीं। मैं सिर्फ इसलिए फ़िक्रमंद था कि मुझे कल अनकरा जाना है 1 हफ्ते के लिए, फिर वापस कप्पादोकिया आ जाऊँगा और कुछ दिन बाद अपने मुल्क चला जाऊँगा। मुझे सिर्फ यही परेशानी थी, मेरे बाद तुम यहाँ अकेली ना रहो। वैसे भी मुझे कप्पादोकिया देखने आई हो, मेरे लिए नहीं। यहाँ वो ज़रा थकान से मुस्कुराया। हया का दिल चाहा कह दे कि नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, मगर अना और खुददारी दीवार बन गई। मैं अकेली नहीं हूँ, कहने के साथ ही इसने एक नज़र बिस्तर पे गुलाबी पर्दे के पीछे सोती बहारे पे डाली।
یہ لوگ بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں۔ پھر ایک دم وہ چونکی، کہیں تم نے انہیں نہیں کہا کہ میرا خیال رکھیں؟ اب اتنا غرق نہیں ہوں میں، ہر جگہ تم پہ نظر رکھوں گا۔ ملوت بے اس علاقے کے ڈسٹرکٹ چیف ہیں اور یہ اپنے ہر گاہک کے ساتھ ایسے ہی پیش آتے ہیں، مہمان نواز ترک قوم مگر تم نے اچھا کیا جو ان کے ہوٹل میں آئی، یہ کافی محفوظ اور اچھا ہوٹل ہے۔ ایسے اسے مشکوک نظروں سے مت دیکھو مجھے، میں نے واقعی کچھ نہیں کیا۔ وہ ذرا خفا ہوا تو حیا نے دھیرے سے شانے اچکائی۔ اوون کب کا بند ہو چکا تھا، سارے کمرے میں بنے مکئی کے دانوں کی خوشبو پھیلی تھی۔ تو کیا اب میں یہاں رہ سکتی ہوں؟ ہاں، جب تک چاہو رہ لو، کل میں چلا جاؤں گا۔ واپسی تک اگر تم یہیں ہوئی تو ہم دوبارہ مل لیں گے۔ انقرہ کیوں جانا ہے؟ اتنی فطری طور پر ذہن میں آنے والا سوال پوچھا تھا، مگر جہان چند لمحے بہت خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ ایک کام ہے۔ کیسا کام؟ اس کے انداز میں کچھ تھا کہ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ایک کام ادھورا چھوڑ آیا تھا جب ابا کی ڈیتھ ہوئی تھی، تب میں اس لیے جرمنی گیا تھا۔ اب میرے پاس چند دن ہیں، سوچا اس کو مکمل کر لوں۔ بات ختم کر کے وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، جیسے وہ اس کے استفسار کا منتظر تھا، جیسے اگر وہ پوچھے تب بھی وہ نہیں بتائے گا، پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ وہ پوچھے۔ حیا نے چند لمحے سوچا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، بات ختم۔ اس نے موضوع کا نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگر اب ایسے مت کہنا کہ یہ ہمارا آخری سفر ہو سکتا ہے۔ غلط نہیں کہہ رہا، میں ترکی دوبارہ نہیں آ سکوں گا۔ ترکی کے لیے اب نکارہ ہو چکا ہوں، اسے اس ملک میں ہو سکتا ہے یہ آخری۔ کہہ رہی ہوں نا، ایسے مت کہو۔ وہ صوفے پہ اپنے دونوں اطراف ہتھیلیاں رکھ کر اٹھنے لگی تو جہان نے رکنے کا اشارہ کیا۔ ایک منٹ، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ جتنے دن ہم ساتھ ہیں، سب کچھ میری مرضی سے طے ہوگا، سارے پروگرام، سارے شیڈول، کہاں ملنا ہے، کہاں جانا ہے، سب میں ڈیسائیڈ کروں گا، اور تم کسی بات سے انکار نہیں کرو گی۔ حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا اجازت دینا ہی بہت تھا، اب کیا بحث کرتی۔ کیا تم پاپ کارن کھاؤ گے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہاتھ کو کن پٹی سے مسلا، شاید اس کے سر میں درد تھا۔ میں بس چلوں گا۔ وہ اٹھا، دیوار میں لٹکے سوئچ بورڈ پہ لائٹ کا ناب گھمایا، جیسے ہمارے ہاں پنکھے کے ناب ہوتے ہیں۔ کمرے میں جلتا ہوا زیرو بلب مدھم ہوتا گیا۔ پھر اس نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا کر باہر دیکھا۔ حیا نے اوون کا ڈھکن کھولا اور گرم گرم پھولا ہوا پاپ کارن کا پیکٹ نکالا۔ جہان تب تک کھڑکی کے سامنے سے ہٹ کر دوبارہ سے بتی تیز کر چکا تھا۔ اگر ڈی جے ہوتی تو کہتی کہ ایسی بتیاں ہماری یونیورسٹی میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اگر وہ ہوتی تو پھر مسئلہ ہی کیا تھا۔ آشیانہ کے نئے مہمان آ گئے ہیں غالباً، باہر رش ہے، اس کے جٹنے تک انتظار کرنا ہوگا۔ وہ صوفے پر اسی جگہ بیٹھتے ہوئے بولا جہاں وہ ابھی